guys, welcome back to Zeta Institute of Science. And here I'm back with a new chapter of chemistry. So students, basically we are going to study chemistry with chapter 16 from your textbook, that is green chemistry and nanochemistry. Any clue what we are going to study in this chapter? Basically, this chapter is divided into two parts. Which two parts? The first part is green chemistry. In green chemistry, what we are going to check is what is the actual definition of green chemistry, what is its discovery, then we will check with a topic, short topic, that is sustainable development. Who have discovered this green chemistry, and the person who has discovered the green chemistry has proposed some principles, that are 12 principles, which are called as principles of green chemistry, and one more thing which you will come to know in the chapter, that we are going to study the principles, the role of green chemistry. Okay, in the second half we are going to study with the nanochemistry. Nanochemistry is something new for you all. So basically we will start with a short introduction of this. Then we will check what is nanoscience. Then we will check with what is actually nanotechnology called as, definition for nanotechnology, then why we use this nano word or this nanomaterial. Then nanochemistry, we will check with the characteristics of nanoparticles, catalytic activities, thermal properties, mechanical properties, some of the applications of nanomaterials. So basically, we are going to check in D what is actually nanochemistry about. Okay? So let's start with the introduction. This introduction we are going to study about green chemistry. What is actually a green chemistry? Okay. Definition for green chemistry. We will check first what is green chemistry called as. Okay. Green chemistry is the use of chemistry for pollution prevention by environmental constituents, design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substance. The definition itself says that, इतना बड़ा definition है, आप लोगों को कुछ तो क्लिक हुआ होगा कि ओ green chemistry ये है, and ये क्यों मिला है कुछ? If not, just listen my words. The first line itself says that it is use of chemistry. Green chemistry means chemistry use हो. Chemistry कहाँ पे use किया है? Pollution को prevent करने के लिए chemistry को use किया गया. Environmental problems. आप लोगों को पता हो कि बहुत ज़्यादा pollution हो गया, ozone depletion. ये सारी चीजें आप लोगों को पता है कि what all are the types of pollution. जो भी environmental issues है, उस सब को डील करने के लिए या फिर उनको प्रिवेंट करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री को स्टार्ट किया गया था. एंड ग्रीन केमिस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स या फिर जो भी मटेरियल्स हम यूज करने वाले हैं पोल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए, दे आर मेड अप ऑफ केमिकल. ओके, एंड इनका हम यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो मटेरियल हमें हार्म कर रहा है या फिर जो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, बेसिकली हजार्डियस जो भी सब्सटेंस है उसको रिड्यूस कर रहे हैं हम या फिर उसको पूरी तरह से निकाल दे रहे हैं. बेस्ट एग्जांपल हम लोग प्लास्टिक निकालने का ट्राई कर रहे थे. इवन थर्मोकोल, इट इज एन हजार्डियस सब्सटेंस बिकॉज इट डिकम्पोजेस लेट. क्या थर्मोकोल सर्टेन इयर्स के बाद भी डिकम्पोज पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट स्टूडेंट्स? सो ऐसे जो सब्सटेंस है जो हमारे एनवायरनमेंट को हमें प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं या फिर हमारे आने वाले जनरेशन में प्रॉब्लमेटिक होंगे, उन चीजों को रिमूव करना, पोल्यूशन को ट्रीट करना केमिस्ट्री या फिर केमिकल्स के थ्रू, दैट ऑल कम्स अंडर द टॉपिक ग्रीन केमिस्ट्री.
I hope you are clear with green chemistry now. Note down the definition fast. Now this green chemistry, ये ग्रीन केमिस्ट्री ऐसे ही तो सबके माइंड में आ नहीं गई होगी, राइट? कहीं ना कहीं किसी के तो सजेशन की वजह से ही ग्रीन केमिस्ट्री स्टार्ट हो. So basically this green chemistry was started or coined by the scientist Paul T. Anastas. He is the scientist who has discovered this concept of green chemistry, and he has discovered certain principles. Okay, we will check what are its principles. Do you know, students, that he is an director of Yale University Center for Green Chemistry as well as Green Engineer, and also he is called as the father of green chemistry. White revolution, green revolution, ऐसे revolutions के father आप लोगों को पता. Something new, that who is the father of green chemistry? General knowledge question. So Paul T. Anastas is the father of green chemistry. Okay. He has composed 12 principles, which 12 principles we are following now also to prevent pollution, to prevent the materials or reduce the materials which are harming us. So, one by one we will check what are the 12 principles and few examples of this 12 principles. But before studying these 12 principles, we will check with a point, that is sustainable development. So what is sustainable development? It is a development that meets the need of the present without compromising the availability of future generation to meet their own need. That means sustainable development वो चीज है जो हमारे आज के जनरेशन में हम लोगों को जो भी चीजें लग रही है, मे बी डेली प्रोडक्ट्स, हाई लेवल प्रोडक्ट्स, जो भी आइटम्स लग रहे हैं हम लोगों को, वो सारे आइटम्स हम लोगों को प्रोवाइड करना. कैसे प्रोवाइड करना कि आगे के जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोगों को इन चीजों की कमी ना. मींस हमें तो अवेलेबल ये चीजें करना ही, जो भी हमें लग रहा है सामान वो हमें तो अवेलेबल करते ही है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ये है कि वो हमें तो अवेलेबल करते हैं, बट इसका भी ध्यान रखते हैं कि फ्यूचर जनरेशन को उसकी कमी ना हो या फिर उस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करना. ओके, नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वेल. Now, moving forward with what? With the principles of green chemistry. So the very first principle which we are going to study is prevention of waste or byproducts. Waste products we know. Generally, हम school times में best out of waste we try to make. Right, students? So basically, you know that prevention of waste, what we are going to do in this prevention. Prevention means कोई भी चीज होने से पहले prevent कर लेना, right? What we generally do. So in prevention of waste or byproducts, we will try कि जो भी waste products मिल रहे हैं हम लोगों को वो कम से कम मिले, उनका number जो है वो reduce हो जाए. We cannot eliminate the waste product, right, students? But we can reduce the waste products. So in this we actually try to reduce them, or we try to make some new products out of waste. Recycle करते हैं हम चीजों का. Recycle word you might have heard. Recycling. Generally you have seen that कि जो भी waste product होता है we recycle them so that उससे कुछ new products बने जो हम आगे जाके use कर सकें. And for this a technology is developed which is called as zero waste technology.
What is zero waste technology or ZWT? This ZWT was developed, मीन्स ये फर्स्ट प्रिंसिपल को टेकन कंसिडरेशन में लेकर ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई ZWT, which chemically synthesize waste product. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये लोग ट्राई करते हैं कि वो रिड्यूस हो जाए या फिर जीरो पे आ जाए, मिनिमम या फिर रिड्यूस। एंड इनका मेन एम होता है कि जो भी रॉ मटेरियल है उसको वेस्ट नहीं करना, बिकॉज स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल इज अ थिंग विच वी कैन यूज फॉर सम अदर थिंग। एक ही रॉ मटेरियल अगर लेंगे तो उस चीज से अगर 2 या 3 चीजें बन रही है और हम एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल वेस्ट कर रहे हैं, तो इट वोंट गो। सो व्हाट दिस टेक्नोलॉजी डू और व्हाट दिस पीपल डू इज कि दे टेक दिस इन कंसिडरेशन दैट ये लोग जो भी प्रोडक्ट बनाए वो कम से कम रॉ मटेरियल में बन जाए, बिकॉज अगर रॉ मटेरियल प्रिजर्व होगा तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, फ्यूचर जनरेशन के भी काम आएगा। सो इसलिए ये लोग ध्यान देते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है एक सिस्टम में, वही रॉ मटेरियल अगर बच रहा है तो वो दूसरे सिस्टम में भी यूज हो जाए। ओके, दिस इज prevention of waste or byproduct, the very first principle given by Paul and Estes. What actually happens? A quick review we will do, that is zero waste technology that the WT was developed. The main aim of this technology is to synthesize waste product. That waste product should be zero or minimum. Their main aim is that the raw material used for making one system should be used to make other system instead of wasting it. Okay? I hope students you are clear with the very first principle of chemistry. Now we will check with the second principle of green chemistry. That is atom economy. You will be feeling like, what is this economy about? Capitalist economy सुना होगा, private economy सुना होगा, socialist economy तक सुना. What is this atom economy? So, atom economy is a measure of amount of atoms from the starting material that are present in the useful products at the end of chemical process. जो भी atoms का काउंट प्रेजेंट है स्टार्टिंग मटेरियल में, वही काउंट एंड में जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जा रहा है तो प्रिजर्व हो या फिर यूजफुल हो। मींस अगर मैंने यहाँ पे 100 एटम्स यूज करके एक प्रोडक्ट स्टार्ट करने का सोचा है, तो आई हैव टू टेक दिस इन कंसिडरेशन दैट जब मेरा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो ये 100 एटम्स जो मैंने लिए हैं इसमें कोई एटम्स वेस्ट ना हो, कोई मॉलिक्यूल वेस्ट ना हो। मींस अगर 100 लिया तो एटलीस्ट आई शुड ट्राई दैट 99% जो एटम्स है वो यूज्ड हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट में हो प्रेजेंट, सिर्फ 1% वेस्ट हो या फिर 0% वेस्ट हो 100 के 100 स्टार्टिंग प्रोडक्ट से एंड प्रोडक्ट में। व्हाई? बिकॉज एटम्स आर समथिंग रिलेटेड टू कंपाउंड्स, एटम से ही कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल्स वगैरह का नॉलेज है ऑलरेडी। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर हम अननेसेसरी कोई भी कंपाउंड वेस्ट करते जाएंगे या फिर कोई भी एटम मॉलिक्यूल वेस्ट करते जाएंगे तो इट विल लीड टू द स्कैर्सिटी ऑफ दैट मटेरियल। अगर मेरे पास सोडियम एंड आई एम यूजिंग दैट सोडियम कि बहुत है जाने दो, यूज कर दो, फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो, तो स्टूडेंट्स एक सर्टेन टाइम आएगा जहां पे वो सोडियम की अवेलेबिलिटी होगी, मीन्स मुझे सोडियम की जरूरत है, बट द थिंग विल बी दैट सोडियम इज नॉट अवेलेबल, सोडियम की स्कैर्सिटी होगी। अगर किसी प्रोजेक्ट पे मुझे 1000 टन सोडियम चाहिए, जस्ट एन एग्जांपल, 1000 टन सोडियम चाहिए, एंड दैट प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टू डू इट टुडे इटसेल्फ, बट द थिंग इज मैंने ऑलरेडी सोडियम बहुत वेस्ट कर दिया है, तो इन माय फैक्ट्री और एट दैट पर्टिकुलर टाइम
मेरे पास 1000 टन एटम सोडियम है ही नहीं प्रेजेंट, 70-80% ही है, 20-25% है ही नहीं, तो व्हाट विल आई डू? इट विल बी लाइक वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, बिकॉज 1000 टन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट थिंग बट आई डोंट हैव दैट. सो जब अवेलेबिलिटी हो और स्केर्सिटी ना हो उस प्रोडक्ट की या फिर उस एटम की, दैट इज थिंग इज कमिंग अंडर दिस एटम इकोनॉमी. ये लोग क्या करते हैं कि जितना लग रहा है उतना ही प्रोडक्ट, उतना ही एटम यूज करते हैं, एंड जो भी एक्स्ट्रा एटम्स वगैरह होते हैं ये लोग साइड में अनवांटेड करके रख देते हैं, एंड थोड़े टाइम बाद स्मॉल अमाउंट में या फिर उस चीज को यूज कर लेते हैं. मीन्स अगर एक प्रोजेक्ट पे इतना एटम बच गया है तो उसको फेंकने की जगह ये लोग उसको प्रिजर्व करते हैं, एंड उसके बाद थोड़े टाइम बाद अगर वो दूसरे प्रोजेक्ट में काम आ सकता है या फिर दूसरी जगह यूज हो रहा है तो उसको वहां यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग डिफरेंट दैट थिंग. ओके, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है जो प्रॉब्लम होती है वेस्ट को डिस्पोज कहाँ करना, कचरा फेंके तो फेंकेगा, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है कि वेयर शुड बी पुट ऑल आवर गार्बेज, तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है अगर हम जो भी एटम्स है या फिर जो भी चीजें हैं हमारे पास उसको केयरफुली यूज करें, उसको वेस्ट ना करें. Here is one example. The concept of atom economy gives a measure of the unwanted products in a particular reaction. तो ये जो एटम इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट्स, ये हमें एक एक्चुअल मेजर बताते हैं कि इस रिएक्शन को करने के लिए इतना प्रोडक्ट जो है अनवांटेड निकलने वाला. वो कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट. मींस आपको जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, सपोज आपको XYZ जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो आपने ले लिया, और उसके नीचे सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स यूज्ड इन द रिएक्शन. मींस अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट में आप लोगों को जितने भी रिएक्टेंट्स लग रहे हैं वो रिएक्शन बनाने के लिए उसको यहाँ पे ले लेंगे हम, एंड अपॉन में जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें हम क्या ले रहे हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट हमें चाहिए उसका रॉ स्ट्रक्चर, मीन्स उसमें कितने कार्बन्स, कितने हाइड्रोजन्स, कितने XYZ जो भी मॉलिक्यूल्स है वो कितने लेंगे. इन दोनों का अगर ऐसे डिविजन किया दोनों पार्ट का एंड मल्टीप्लाई बाय 100 तो हम लोगों को पता चल जाता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को कितना एक्स्ट्रा या फिर अनवांटेड प्रोडक्ट मिल रहा है. ये फॉर्मूला के थ्रू हमें क्या मिलता है पता है? जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स वेस्ट होने वाले वो ऑलरेडी हम प्रिजर्व कर सकते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने ब्यूटान 1 ऑल का. ब्यूटान 1 ऑल को मैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन में कन्वर्ट करने वाली, 1 ब्रोमो ब्यूटेन. ओके, सो बेसिकली माय रिएक्शन इज दिस वन. अगर मैं इसका परसेंट एटम इकोनॉमी निकालूंगी तो मुझे पता है कि ब्रोमो ब्यूटेन में क्या चाहिए, 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, 4 कार्बन्स होने चाहिए, 9 हाइड्रोजन होने चाहिए, यानी ब्रोमीन होना चाहिए. बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स में इतने इतने एटम्स लगने वाले. उसके नीचे मैं क्या लिखूंगी, सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स यूज्ड इन द रिएक्शन. जितने भी रिएक्टेंट्स मैंने यूज किए हैं उसका फॉर्मूला वेट वो मैंने लिख दिया यहाँ पे. उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को डिविजन में रख के 100 से मल्टीप्लाई करूंगी. आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, जस्ट अ मोमेंट, after dividing these two terms and multiplying it by 100, I will get my answer as 49.81%. Sorry for this, the screen downside is not visible to you all. So the answer is 49.81%. That means if I have to make this product, that is bromobutane from butan 1 all, I will get 49.81% unwanted product in my reaction.
This 49.81% I can store ना. अगर मैं इसको स्टोर कर रही हूँ और दूसरे किसी रिएक्शन में अगर इसकी जरूरत है तो आई कैन यूज इट ना. Why to waste? क्योंकि अगर मैं इसको वेस्ट करूंगी तो फिर से प्रॉब्लम्स हो जाएगी. क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? एक तो स्कैसिटी हो सकती है कि मुझे लग रहा है वो चीज है उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं. दूसरा क्या होगा? इसको डिस्पोज कहाँ करूं? Where should I throw this garbage? So to avoid these things, it is better to prevent them. Okay, students, just note down this example. Okay, students, now let's check with the third principle of green chemistry, that is less hazardous chemical synthesis. So this synthesis was designed so that जो भी chemicals वगैरह हम produce करें, they should be safe. वो ज़्यादा हमें harmful ना, because we know that chemicals are very hazardous. And अगर इसका waste ज़्यादा product हो रहा है, waste product ज़्यादा होगा, that waste will be harmful. पहले ना एक insecticide था which was called as DDT. Full form of DDT is dichlorodiaphenyl trichloroethane, and this was used as an insecticide which was actually efficient in controlling diseases like typhoid and malaria. जो भी mosquitoes के through diseases वगैरह होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छा था. तो DDT was used. Okay, but what happens? जैसे जैसे टाइम स्पैन गया और लोगों ने DDT पे सर्च करना स्टार्ट किया तो लोगों को समझा नो दिस DDT इज किलिंग दैट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज बट हार्मिंग अस, हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा हार्म कर. सो दिस DDT वाज रिप्लेस्ड. क्यों रिप्लेस किया? बिकॉज जब लोगों को ये बात क्लियर होगी कि दिस विल हार्म अस इनडायरेक्टली, what they decided is that we should not use DDT. तो लोगों ने फिर धीरे धीरे BHC बनाना स्टार्ट किया. That is BHC. This BHC is actually benzene hexachloride. Nowadays जो भी इंसेक्टिसाइड में मटेरियल यूज होता है वो DDT नहीं होता, ये होता है BHC, that is benzene hexachloride, and this is one of the gamma isomer का टाइप है ये. इसकी वजह से हम इसको गैमेक्सिन या फिर लिंडेन करके बुलाते हैं. Why do we use BHC? Because it doesn't cause any harm to the surrounding, not to any of the living organisms, not to any of the surrounding. DDT was causing harm, that's why DDT was replaced. Okay, students? Okay, students, now let's check with the fourth principle of green chemistry, that is designing safer chemicals. Now you would be thinking like, why to design safer chemicals? Actually, this principle is same as like less hazardous chemical synthesis. In both the things we are trying to means third वाले में हमने क्या किया कि toxic चीज नहीं बना. Designing safer chemicals में भी वही करेंगे. Students, actually in this what happens is कि we try to make the things which are made up of such kind of raw materials which are less toxic. क्योंकि raw material process वगैरह फैक्ट्रीज में होता है, राइट स्टूडेंट्स? एंड उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि जो भी वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं उन लोगों को भी उसका इफेक्ट होता है. सो वहां पे वर्क कर रहे वर्कर्स को कोई इश्यू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हेल्थ रिलेटेड डिजीज ना प्रॉब्लम्स ना हो, इसकी वजह से हम ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं जो लेस हजार्डियस हो. फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल इंडस्ट्री है पॉलिथीन की, मीन्स जो भी लोग होते हैं वो तो हमें पता है. तो एक पॉलिथीन की केमिकल इंडस्ट्री है एंड बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री जो पॉलीमर इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो केमिकल यूज किया जा रहा था वो था एडिपिक एसिड का. जस्ट ADIPIC. So actually adipic acid, this acid is one of the type of benzene, means ये benzene से बना है. Adipic acid is made up of benzene. And students, you know what?
दिस बेंजीन इज कार्सियोजेनिक। आप लोगों ने बेंजीन के चैप्टर्स वगैरह अगर किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि बेंजीन इज अ कार्सियोजेनिक बेंजीन इज अ कार्सियोजेनिक प्रोडक्ट, राइट? सो बेसिकली कार्सियोजेनिक, कार्सियोजेनिक आप लोगों को पता है कि कार्सियोजेनिक का मीनिंग क्या होता है? If not, then I will let you know. Carcinogenic means बेंजीन्स, जो भी बेंजीन जो है वो कार्सियोजेनिक प्रोडक्ट से बनता है. दिस कार्सियोजेनिक प्रोडक्ट्स आर द थिंग्स व्हिच कॉज अस कैंसर. कैंसर कॉजिंग मींस कैंसर का सबसे ज्यादा या फिर कैंसर किस वजह से होता है? कार्सियोजेनिक मटेरियल हमारे बॉडी में या फिर किसी बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है तो मतलब हमें कैंसर. दिस कार्सियोजेनिक थिंग is actually benzene and polymer industry में adipic acid use कर रहे हैं and this is also a carcinogenic, right? तो वहां पे जो वर्कर्स वगैरह काम करते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम होती है. क्या प्रॉब्लम होती है? कि इनहेल वगैरह करते वक्त ये कार्सिनोजेनिक उनके अंदर चला जाता है. एडिपिक एसिड इनहेल करते वक्त अंदर जाता है which cause cancer and उनको कैंसर जैसी डिजीज होती. एंड यू नो दैट व्हाट इज कैंसर and कितना हजारियस है कैंसर. ह्यूमन हेल्थ के लिए इट्स नॉट एट ऑल सेफ. सो व्हाट द साइंटिस्ट डिसाइडेड दैट जब प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री बन रहा था तो वो प्रिंसिपल में क्यों ये चीज की गई कि सेफर केमिकल्स बनाना है. ये जो एडिपिक एसिड है ना इसको चेंज करना था लोगों को. तो इन लोगों ने एडिपिक एसिड को किस चीज से चेंज किया है? ग्रीन टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्रैग करके एंड फ्रॉस्ट करके दो चीजें बनाई है. These two things are made instead of adipic acid. अब polymer industries में ये यूज करता है which is a green product, means totally safe for human health. Okay, and this is synthesized by glucose. So ये ग्लूकोज से सिंथेसाइज है. इसकी वजह से लोगों को इस चीज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर ये इनहेल वगैरह किया तो उनके हेल्थ को कुछ इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज अ ग्लूकोज ना. बट एडिपिक एसिड के केस में वैसा नहीं था. इसकी वजह से एडिपिक एसिड जो पॉलीमर इंडस्ट्रीज में यूज होते थे उसको अब इन चीजों से रिप्लेस किया जाए. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, that is using safer solvents and auxiliaries. Using solvents made up of which are safe for us and some auxiliary products. What actually happens in this, जो भी solvents या फिर auxiliary substance होते हैं ये large percentage पे बनते हैं, right students? तो इसमें ना जो वेस्ट जनरेट होता है वो भी लार्ज क्वांटिटी में होता है. तो व्हाट वी ट्राई इज कि इसमें जो भी सॉल्वेंट्स वगैरह यूज हो वो ग्रीन सॉल्वेंट्स हो, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट करती है. तो ये वेस्ट अगर हम ऐसे ही सराउंडिंग में डंप वगैरह करेंगे तो इट विल बी वेरी हार्मफुल. तो व्हाट एक्चुअली डू दिस पीपल डू इज लाइक दे यूज ग्रीन सॉल्वेंट्स. ग्रीन सॉल्वेंट this green solvent actually what does is अगर हम इसको सोसाइटी में या फिर सराउंडिंग में कहीं पे भी डंप कर रहे हैं तो इट वोंट हार्म आवर नेचर और एनी ऑफ अस. सो इसकी वजह से सेवर सॉल्वेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं एंड बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें हेल्पफुल है. मींस most of the organic compounds are used as solvent and this is also इसकी वजह से क्या हो रहा है? अगर हम ग्रीन सॉल्वेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं इसकी वजह से एक ये भी चीज हो रही है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. सो हमें गुड रिजल्ट्स मिल रहे हैं सॉल्वेंट्स वगैरह यूज करके. ओके, and that is the reason we are trying to make some solvents which are very safe. क्योंकि ये जो सेफ सॉल्वेंट्स है फिर ग्रीन सॉल्वेंट्स है हमारे नेचर को भी हेल्प कर रहे हैं
एक साइड से ये हमें हार्म भी नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज वर्किंग गुड। एंड थर्ड थिंग इज जो भी सॉल्वेंट्स वगैरह ऑक्सिलरीज वगैरह हम यूज करते हैं दे गिव, और उनकी वजह से ना नेचर को बहुत ज्यादा हार्म होता है। तो वो एक हार्म जो होता था नेचर को, जो भी पोल्यूशन होता था एयर वाटर का, वो रिड्यूस हो जाता। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। आई नो ये थोड़ा आप लोगों को थियोरी में जा रहा होगा एंड बहुत ज्यादा लर्निंग पार्ट है, डोंट वरी, आपको प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है वही याद करना है, सो ताकि आप वो अपने ओन वर्ड्स में फ्रेम कर सकें। ओके, so don't be panic. Now let's check with the sixth one, that is design for energy efficiency. इतने टाइम से हम लोग चेक कर रहे थे वो प्रोडक्ट्स जो हम लोगों को सेफ हो, हमारे लिए कम हो, या फिर उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट ऑल वी वर चेकिंग इन द फर्स्ट स्लाइड, राइट? नाउ सिक्स में हम कुछ एनर्जी रिलेटेड चेक कर रहे हैं। एक्चुअली इसको क्यों है डिजाइन वगैरह किया जाता है, कुछ केमिकल्स वगैरह अगर हम सिंथेसाइज करते हैं तो जो एनर्जी होती है उसके अंदर, कोई भी केमिकल के अंदर जो एनर्जी होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। एंड अगर एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है किसी भी केमिकल की, तो इट इज पॉसिबल फॉर अस टू टेक द रिएक्शन इन एट रूम टेम्परेचर। वो रिएक्शन हम रूम टेम्परेचर पे कैरी कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में भी अगर हम उस रिएक्शन को करने का ट्राई कर रहे हैं तो वो इजी हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज एनर्जी ओवर हियर इज मिनिमाइजिंग। एंड इसकी वजह से जो कैटलिस्ट वगैरह जो भी चीजें हम यूज करते हैं दे आर गुड। अगर आप बायो कैटलिस्ट वगैरह यहाँ पे वर्क कर रहे हो एंड या फिर कहीं केमिकल सिंथेसाइजर्स के ऑफिसेस वगैरह में जो वर्कशॉप्स होते हैं वहां पे अगर ये सब काम कर रहे हो तो आप लोगों को समझेगा कि अगर एनर्जी कम हो जाती है तो क्या इशू, क्या चीजें होती है। एक्चुअली लोग एनर्जी इसलिए कम करते हैं कि पहला तो कोई भी टेम्परेचर, कोई भी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, कोई भी अमाउंट ऑफ प्रेशर पे वो रिएक्शन कैरिड हो जाए, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि इतना ही टेम्परेचर मिलेगा तो ही हम रिएक्ट करेंगे, वरना एट अ रूम टेम्परेचर वी वोंट वर्क एट ऑल। सो इसकी वजह से कुछ रिएक्शंस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है, तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हट जाती है। एनर्जी लो होगा तो ब्लास्ट वगैरह या फिर रिएक्शन अगर फेल हो रही है तो जो रिस्क होता है फायर वगैरह का, जो भी टाइप के रिस्क होता है वो भी अवॉइड हो जाता है। सो वी ट्राई टू डिजाइन सच टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर having less energy in it, okay, which is having less energy in it. We'll try to make that type of products. So design for energy efficiency means the energy which is used should be low. Okay, note it down if you want. Now moving forward, checking with the seventh principle of green chemistry, that is use of renewable feedstocks. Now students, you might have a question that what is feedstocks, और या फिर अब ये क्या, इतने देर से मैम केमिकल कर रही थी, अब ये क्या। सो पेट्रोकेमिकल्स वगैरह जो होते हैं या फिर जो केमिकल्स प्लांट से बने होते हैं जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल है दैट इज अ फीडस्टॉक, मींस हम उसको रिन्यू कर सकते हैं। क्यों रिन्यू कर सकते हैं? बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम प्लांट, राइट? सो जो भी रिन्यूएबल सोर्स होते हैं या फिर जो भी प्लांट ऑब्टेन सोर्सेज होते हैं दे आर कॉल्ड एज फीडस्टॉक्स फॉर अस, एंड बेस्ट एग्जांपल फॉर अ फीडस्टॉक इज क्रूड ऑयल। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी चीज ज्यादा यूज करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो व्हाट हैपेंस टू नॉन रिन्यूएबल फीडस्टॉक? जो चीजें हमें वापस नहीं मिल रहा, वंस इट इज ओवर वी कैन नॉट गेट इट। तो ऐसी चीजों के साथ क्या होता है कि वो खत्म हो जाती है एंड फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिलेगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास 10 रुपीज है, आपने उसको स्पेंड कर दिया एंड आपको पता है कि आपको आगे वाले मंथ में, मीन्स जो कमिंग मंथ है उसमें आप पैसे नहीं मिल रहा, तो आपके पास वो 10 रुपीज पूरे मंथ के लिए, ओके 10 कम हो जाएगा आप लोगों के लिए तो 100 पकड़ते हैं,
₹100 है एंड आपको बोला गया है कि पूरे दिसंबर मंथ में सिर्फ ये ₹100 और कहीं से भी पैसे नहीं मिले. जस्ट इमेजिन. सो अब आपको पता है कि आपको ये ₹100 पूरे मंथ चलाना, बट कुछ ऐसा हो जा रहा है कि या फिर आपको कुछ खाने का मन है या फिर फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो यहाँ वहां, आपने वो ₹100 डे 1 पे खत्म कर दिया. डे 1 पे खत्म हो गए वैसे एंड कमिंग मंथ इज दिसंबर. ओके, तो 31 डेज है. तो 31 डेज में से आपने फर्स्ट डे पे वो ₹100 स्पेंड आउट कर दिया. तो पेंडिंग जो 30 डेज है उसमें अगर आपको कोई चीज लेनी है, मीन्स आपको बोला है कि ये स्टेशनरी लेना है एंड आपको पता है कि आपके पास पैसे नहीं, तो उस चीज की आपको स्कैरसिटी हो गई, राइट. अब आपके पास पैसे नहीं, तो यू आर टोटली नल, राइट. सेम केस वैसे ही होता है जैसे कोई रिसोर्सेस है आपके पास, आप उसको इतना यूज कर रहे हो कि आगे वाली जनरेशन को वो बच ही नहीं रहा है, या फिर जो बच रहा है वो हाई प्राइसेस में मिल रहा है. तो इट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, राइट स्टूडेंट्स. सो व्हाट एक्चुअली पीपल डू इज, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये एक्चुअली थोड़ा बर्डन हो जाता है एनवायरमेंट के ऊपर कि अब ये तो मिलने नहीं वाला है तो कैसे मिलेगा. सो व्हाट एक्चुअली पीपल डू इज, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब नॉन रिन्यूएबल को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ज्यादा यूज नहीं करना, ये चीज कर सकते हैं. बट जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको क्या करते हैं, फ्यूचर जनरेशन को मिले वो चीजें या फिर एनवायरमेंट में से खत्म ना हो, तो व्हाट पीपल डू इज उसको सेव करना स्टार्ट करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वगैरह चीजें करते हैं. मीन्स ऐसे कुछ करते हैं कि वो चीजें कम लगे. अभी अगर ऑयल वगैरह की बात की जाए तो ऐसा एक टाइम आएगा कि ये ऑयल वगैरह भी खत्म हो सकता है ना स्टूडेंट्स. तो लोग क्या करते हैं, या तो बायोडिग्रेडेबल मेथड मीन्स स्टिक्स वगैरह, लकड़ी वगैरह चला के यूज करते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत गैस का अमाउंट बच जाता है ना. वैसे ही बाकी सारी चीजों को भी ये लोग ट्राई करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सेव करें ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो. तो सेवन प्रिंसिपल इज दैट थिंग्स विच वी वोंट गेट अगेन वी हैव टू सेव दैट और वी हैव टू नॉट वेस्ट देम. ओके, now moving forward to the eighth principle, that is reduce derivatives or to minimization of steps. What actually it is, you know that अगर हम कोई भी कंपाउंड बना रहे, राइट स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि कॉमनली हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस का, राइट. कि ऐसे ऐसे करो तो हो जाएगा. तो जो अननेसेसरी चीजें डिराइव हो जाती है या फिर एडिशनल स्टेप होते हैं, इफ यू हैव वन थिंग जिसको 4 स्टेप्स में आप 5 to 6 स्टेप्स में आपने कैरी किया, बट ये जो 2 to 4 वाले स्टेप्स है वो अननेसेसरी स्टेप्स है आपके उस रिएक्शन में. क्योंकि अगर आप वो 2 to 4 वाले स्टेप, सपोज हाँ 1 to 6 तक के एक प्रोडक्ट है कि यहाँ पे आपने उसको स्टार्ट किया एंड 6 पे आपको एंड किया, बट अगर उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाए तो देखा जाएगा तो 2, 3 एंड 4, ये जो 3 स्टेप्स है आपके, ये आपके अननेसेसरी करने की जरूरत ही नहीं थी. फिफ्थ स्टेप और 6th स्टेप किया होता तो भी गुड था. ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ स्टेप्स हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, है ना. मैथ्स करते वक्त जनरली होता है कि अननेसेसरीली हम स्टेप्स बढ़ाते जाते हैं. सो सेम केस है कि कुछ डेरिवेटिव्स बना रहे हैं एंड कुछ स्टेप्स ज्यादा. अब ये स्टेप्स की तो एक्चुअली जरूरत नहीं है ना, तो व्हाट दे डू इज जो भी डेरिवेटिव्स वगैरह बनाने, क्योंकि अगर ये स्टेप्स हम कैरी आउट कर रहे हैं केमिस्ट्री में, दैट मीन्स वी आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट अ लॉट, तो वो प्रोडक्ट कम हो जा रहा है. तो व्हाट पीपल डू इज जो अननेसेसरी स्टेप्स होते हैं दे ट्राई टू रिमूव दैट स्टेप्स एंड मेक इट शॉर्ट एंड इजी. एंड शॉर्ट एंड इजी होगा तो हम स्टूडेंट्स के लिए भी प्रेफर करना इजी हो जाएगा एंड नेचर के लिए भी एक साइड से हेल्पफुल है. कैसे हेल्पफुल है नेचर के साइड स्टूडेंट्स, जैसे अननेसेसरी स्टेप्स करोगे आप तो अननेसेसरी स्टेप्स में भी कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें लगती हैं आपको, या फिर उस अननेसेसरी स्टेप्स की वजह से जो बाय प्रोडक्ट है वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि और जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है. सो इतना सारी चीजें करने से अच्छा अननेसेसरी चीजों को ही निकाल देते तो प्रोडक्ट भी बचेगा, वेस्ट भी नहीं होगा ज्यादा एंड लर्निंग भी इजी हो जाएगी. ओके, हाउ आप लोगों को क्वेश्चन होगा, राइट. This is one of the example.
This is M, that is metahydroxybenzaldehyde. जब हम इसका सिंथेसिस करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज, जब भी हम इसका सिंथेसिस करेंगे तो हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, राइट? सो ये वाला स्टेप कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतना स्टेप फॉलो करने के बाद एक ओ यहाँ पे ऐड होगा और वो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, है ना? एटम इकोनॉमी भी इसमें डिक्रीज हो जा रही है. सो व्हाट एक्चुअली ग्रीन टेक्नोलॉजीज डू इज कि जो भी अननेसेसरी स्टेप्स होते हैं वो अवॉइड किए जाते हैं. मींस अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी को ये चीजें करनी है तो व्हाट दे डू इज, कोई ऐसी चीज, ये जो कैटलिस्ट डाला है इसी में ये वाला भी कैटलिस्ट ऐड कर देंगे एंड डी प्रोटेक्शन भी, मतलब तीनों स्टेप एक ही बार में कर देंगे. दैट मीन्स व्हाट दे विल ओनली कैरी इज दैट दे विल पुट दिस एज अ कैटलिस्ट, बट इसी में वो लोग O को भी ऐड कर देंगे एंड ये जो डी प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप है ना वो भी यहाँ पे लिख देंगे एरो पे. ठीक है, डी प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन साइमल्टेनियसली अकर करेगा. ये वाला प्रोडक्ट एंड ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा, डायरेक्टली ये सारी चीजें करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. इज इट क्लियर विथ यू ऑल? तो स्टेप्स को रिड्यूस करते हैं इसमें, ज्यादा कुछ नहीं. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. That is the ninth one, that is use of catalyst. What actually happens is, you students know that what is catalyst. Catalyst is something which is put in the chemical reaction to speed its rate of reaction, right? Basically catalyst क्यों डालते हैं हम रिएक्शन में स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें उस रिएक्शन का स्पीड बढ़ाना. तो पता है आप लोगों को ये क्यों कैटलिस्ट बढ़ाता है स्पीड, ठीक है, लेकिन ये क्यों हम डालते हैं, क्यों जरूरत है रिएक्शन को स्पीड करने की? एक तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, वो चीजें हमें पता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा है, इसकी वजह से हम रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. बट द थिंग और द आइडियोलॉजी यूज बिहाइंड दिस दैट की कैटलिस्ट यूज करना चाहिए, दैट इज द नाइन्थ प्रिंसिपल. पॉल सेज दैट कि अगर हम कैटलिस्ट को रिएक्शन में डालेंगे कोई भी तो वो रिएक्शन को स्पीड ही नहीं देता है, बट जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होने वाला है ना वो भी डिक्रीज हो जाता है. बेसिकली कैटलिस्ट डालने का मेन एम होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होने वाला है ना वो कम हो जाए. सो टू रिड्यूस द वेस्ट कैटलिस्ट यूज किया था पॉल ने, कि कैटलिस्ट डालने के बाद रिएक्शन में जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होना, अगर कोई रिएक्शन है एंड उसमें 50% आपको वेस्ट मिलने वाला है तो कैटलिस्ट डालने के बाद वो मे बी 35, 25 ऐसे कुछ रेट में रिएक्शन मिल जाए, ये मिलेगा वेस्ट. तो वेस्ट का अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा. बट थोड़े टाइम बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि कैटलिस्ट डालने की वजह से रिएक्शन का टाइम कंज्यूमिंग भी लेस हो जाता है, मीन्स वो रिएक्शन को स्पीड अप भी कर देती है, which is also good, right students? So catalyst use करने के दो reasons मिल गए. First, it increases the speed of reaction. Second, that it decreases or minimizes the use of waste. Means waste products ये decrease कर देता. Okay? Is it clear with you all that why we use catalyst? Okay. Now moving further on the 10th type of principle, that is design for degradation. So what actually happens in this, we will check with that. केमिकल्स वगैरह जो भी हम डिजाइन करते हैं हम वैसे डिजाइन करते हैं कि वो डिग्रेड कर सके. हम मीन्स उसको अगर हम जलाएंगे या फिर डिकम्पोज वगैरह करें तो इजीली हो जाना चाहिए, डिस्कार्ड हो जाना चाहिए. इट शुड गेट डिस्कार्ड. बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि डिस्कार्ड होने में बहुत प्रॉब्लम होती है. कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं फिर से थर्मोकॉल का. थर्मोकॉल एक तो डिग्रेडेबल नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल डिकम्पोजेबल, बहुत ज्यादा टाइम लेता है बट स्टिल नहीं होता डिकम्पोज. एंड
क्या होता है अगर हम थर्मोकोल को डिकम्पोज नहीं हो रहा है, चलो जला देते हैं, जलाने के बाद वो टॉक्सिक गैस रिलीज करता है विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द एनवायरमेंट एज वेल एज फॉर अस. सो साइंटिस्ट और द थिंग पीपल थिंक दैट कि अब हमें, पीपल के माइंड में ये चीजें आई, कि लोगों के माइंड में आया नहीं, अब हमें कुछ ऐसी चीजें डिजाइन करनी चाहिए, ऐसे केमिकल्स डिजाइन करने चाहिए जो डिस्कार्ड भी इजीली हो जाए एंड टॉक्सिक भी ना हो, और हमें भी नुकसान ना दे, हमारे एनवायरमेंट को भी ना. सो अगर हम लोगों ने, मीन्स इनका तो मेन एम था कि हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने जो डिग्रेड हो जाए. जब ये माइंड आया तो ऑटोमेटिकली ये चीज तो, एनवायरमेंट तो अपने आप क्लीन हो जाएगा ना. अगर चीजें डिग्रेड हो जा रही है, डिकम्पोज हो जा रही है, तो एनवायरमेंट अपने आप क्लीन हो जाएगा, राइट. सो जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, पेस्टिसाइड्स जो बायोडिग्रेडेबल है, ऐसी चीजें बनाना स्टार्ट हो गई. एंड इसकी वजह से क्या हुआ, रिसाइकल मार्क्स हो गई, कुछ चीजें रिसाइकल कर रहे जो डिकम्पोज नहीं हो पा रही, दैट वी आर ट्राइंग टू व्हाट, we are trying to recycle them and reuse them. R mantras यूज करते हैं, reuse, recycle, renew, ऐसे करते हैं ना, कि चीजें अगर नहीं हमारे काम की तो हम उसको रिसाइकल करने का ट्राई करते हैं. Why we recycle them? क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो सकते, हमें पता है. तो व्हाट वी एक्चुअली डू कि रिसाइकल हो जाएगा तो उसका कुछ न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा जो हम यूज कर पाएंगे, तो वो चीज नेचर को भी हार्म नहीं देगी एंड हमारा काम का काम भी हो जाएगा. सो design for degradation में what actually we try to do, make some products which are degradable, less toxic and the third recycle कर सके वैसी चीजें. Okay, now students moving on to the further topic, that is 11th principle. Is, we will check with that. We know many methods to check that this substance is hazardous. बहुत सारी मशीन है कि उससे हमें पता चल जाता है कि मॉनिटर वगैरह करते हैं या फिर कुछ प्रोसेस वगैरह करने के बाद पता चल जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट hazardous है. तो व्हाट एक्चुअली पीपल डू इज, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें और बनाई है, मॉडिफाई की है, जिसकी वजह से हर एक चीज, हर एक यूनिट को मॉनिटराइज किया जाता है, प्रॉपर मॉनिटराइजेशन दी जाती है, जिसकी वजह से केमिकल इंडस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं, पीपल ऑटोमेटिकली hazardous चीजें निकाल देते हैं, बिकॉज दैट मशीन डजंट अलाउ hazardous थिंग्स टू पास. मतलब उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, hazardous materials होते हैं ना, वो ज्यादा नहीं बनने चाहिए, इसी की वजह से बहुत सारी मशीन्स बनाई गई है. जब कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को हम उस मशीन में डाल, वो मशीन खुद ही डिटेक्ट कर देती है कि इसमें इतना परसेंट hazardous मटेरियल, इतना परसेंट. अगर वो मशीन बता रही है कि इसके अंदर ज्यादा hazardous मटेरियल, तो दैट प्रोडक्ट इज नॉट एक्सेप्टेड, उसको हम मार्केट में लॉन्च ही नहीं करते, पीपल कैन नॉट यूज इट क्योंकि वो hazardous. सो रियल टाइम एनालिसिस पॉल्यूशन प्रिवेंशन में लोगों का काम ये होता है कि डिफरेंट मशीन्स सेटअप किए जाए जो hazardous सब्सटेंस वाले मटेरियल को कौन से है वो बताए हमें, ताकि हम उसका यूज ना करें. ओके, now moving on to the 12th principle, that is safer chemistry for accident prevention. एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना. सो कुछ केमिकल्स ऐसे बनाए हैं जो थोड़े सेफ हो, एक्सीडेंट्स वगैरह अवॉइड. मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया कि रिन्यूएबल वगैरह करते वक्त या फिर डिजाइन फॉर डिग्रेड जो भी प्रोडक्ट्स होता है, अगर वो ज्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जी अगर कम कर रहा है तो कम एक्सप्लोसिव हो रहा है. मैंने आप लोगों को उस टाइम पे बताया क्यों हम ये कर रहे हैं. एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते वक्त या फिर कुछ केमिकल्स यूज करते वक्त अपने आप एक्सपोज हो जाते हैं वो केमिकल्स या फिर कुछ गैसेस सब्सटेंस इतने हार्मफुल होते हैं कि उसको इनहेल करने के बाद हमें हेल्थ डिजीज हो जाए. सो जो एक्सप्लोजन होता है, फायर होता है, एमिशन वगैरह की जो चीजें होती है, उन चीजों को कम करने, मींस जो भी एक्सीडेंट करवा सकते हैं केमिकल्स, वो चीजें जो केमिकल्स जो भी हमें एक्चुअली हार्म कर रहे हैं या फिर जो भी केमिकल यूज करते हैं हमें
इंजरी हो जा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है। एंड एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है विच वी कैन नॉट, हम इसको टाल नहीं सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सीडेंट जब होना होता है तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। सो हम क्या करते हैं, लास्ट प्रिंसिपल जो है वो बोलता है कि हमें कुछ ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जो हमें एक्सीडेंट, उसकी वजह से हमें एक्सीडेंट वगैरह कुछ होने के रिस्क ना। तो लोग क्या करते हैं, अब जो भी केमिकल से हमें जो भी गैसेस हमें हार्म कर रहे हैं उसको ग्रीन केमिस्ट्री के थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं, मीन्स ऑर्गेनिक या फिर कोई ऐसी चीज के साथ रिप्लेस कर रहे हैं जो लेस हजार्डियस हो, लेस टॉक्सिक हो एंड जिससे एक्सप्लोजन कम। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने टोटल 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री स्टडी किया है। अब एक बार आपकी टेक्स्ट बुक में रीड करो, ये पॉइंट्स है उसमें ऐसे रीड करो, बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई प्रॉपर नोट्स नहीं है, मैंने जस्ट कीवर्ड्स आपको दिखाए एंड उसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया। आप एक बार रीड करो, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो लेट मी आस्क, जस्ट आस्क मी अबाउट द प्रिंसिपल्स। ओके, नाउ ग्रीन केमिस्ट्री तो स्टडी कर ली, उसके 12 प्रिंसिपल्स स्टडी कर ले। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फर्दर टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट्री। व्हिच केमिस्ट्री? ग्रीन केमिस्ट्री, बिकॉज वी आर स्टडीइंग दैट। ग्रीन केमिस्ट्री हमने इसलिए बना बिकॉज you know that on our earth pollution is increasing in a lot, ये आप लोगों को पता है, राइट। तो क्या हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से हम वेस्ट एंड पोल्यूशन की वजह से वी आर आल्सो नॉट एबल टू सस्टेन इन दिस एनवायरनमेंट। सो ये एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया है हमने, बिकॉज ये पोल्यूशन एनवायरनमेंट भी हमने क्रिएट किया, राइट। सो टू रिमूव दिस अनसस्टेनेबिलिटी जो है उसको रिमूव करने के लिए, जो पोल्यूशन है उसको रिमूव करने के लिए जो भी स्टेप्स ले रहा है, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प अस टू रिड्यूस और टू प्रिवेंट पोल्यूशन। It helps in production of such type of chemicals or industries which are not emitting any type of toxic gases or toxic waste. Because जो भी इंडस्ट्रीज है आप लोगों को पता होगा कि they release high level of toxic gases and toxic waste, right? So ये जो भी चीजें रिलीज होती है इसको मिनिमाइज करने का काम ग्रीन केमिस्ट्री का, that means cleaning our environment, okay? And ग्रीन केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, ये 12 प्रिंसिपल्स ही तो है, इजीली फॉलो हो जाएंगे। नो स्टूडेंट्स, to follow these 12 principles and to take steps on them, it is very hard and इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं हम लोगों को। बट क्यों हम ग्रीन केमिस्ट्री, मतलब आप लोग बोल रहे हो कि मैम आप बोल रहे हो कि ग्रीन केमिस्ट्री के स्टेप्स लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मीन्स इसको एग्जीक्यूट करना इज अ बिग इशू एंड जो भी चैलेंजेस फेस करना है वो तो अलग ही। बट स्टूडेंट्स, जो ग्रीन केमिस्ट्री है हमारे लिए, ये हमें अगर हमारे अर्थ को हमारे लिविंग के लिए बनाना है, मीन्स हम रह सके ऐसा बनाना है और हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस चीज के लिए या फिर उस सोच के वजह से, मीन्स हमें रहना है इस अर्थ पे, ये अगर आइडियोलॉजी हमने क्रिएट की तो हमें समझेगा कि हाँ बाबा ग्रीन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई टू डू सम ऑफ द थिंग्स। मिस मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप सारे 12 प्रिंसिपल्स फॉलो करो, बट स्टूडेंट्स यू कैन ट्राई ना कि वेस्ट प्रोडक्ट्स कम जनरेट हो, कुछ ऐसी चीजें ना खरीदे हम लोग जो वेस्ट हो जाए आगे जाके या फिर डिग्रेड ना होती है, तो ऐसी चीजें हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसे खरीदते हैं ना जो रिसाइकल कर, कुछ इनिशिएटिव हम देंगे, कुछ इनिशिएटिव दूसरे लोग देंगे, तो ही ये ग्रीन केमिस्ट्री या फिर ये जो अर्थ है वो हमारे रहने के लिए बने। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ बी हैप्पी बिकॉज ये जो ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री, इट इज टोटली ओवर। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा ग्रीन केमिस्ट्री स्टडी किया है। जस्ट ट्राई टू रिकैप इट थ्रू योर टेक्स्ट बुक and if you have any doubts just let me know. Okay students, and in the next lecture we will start with the introduction of nanochemistry and the study of nanochemistry. What is actually nanochemistry? Okay,
I hope guys that you're clear with the topic which we have studied in this lecture. If you have any doubt, just ping me on my personal wall, or you can mention the doubt in the chat section as well. And if you are a new watcher on our channel, you subscribe our channel and click the bell icon.